लास्ट क्लास में हमने रेट ऑफ फ्लो पढ़ा था ना. So this Poiseuille equation is related to rate of flow. What this equation says, the rate of steady flow through a tube is given by Q is equal to pi p r to the power 4 8 eta L. Here P is pressure difference across tube, R is radius of tube, L is length of the tube, and eta is coefficient of viscosity of fluid. इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, अगर डिराइव करेंगे तो दैट वी विल डू बाय द डायमेंशनल एनालिसिस. इस चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर डेरिवेशंस है जो है नहीं, एंड दोज आर द डेरिवेशन ओनली बाय द डायमेंशनल एनालिसिस दैट वी हैड लर्न इन द चैप्टर 2, दैट डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एनर्जीज ऑफ फ्लूइड. एनर्जीज ऑफ फ्लूइड में हम मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. द वन एनर्जी एडिशनल इज द प्रेशर एनर्जी, इज द एनर्जी ड्यू टू प्रेशर ऑफ फ्लूइड, is the energy due to pressure of fluid. It is equal to product of pressure and volume. It is equal to product of pressure and volume, and so we can say the pressure energy per unit volume is equal to P. Pressure energy per unit volume is P. देखो हम fluid, because it is flowing fluid, the fluid in motion. So here the volume is not defined. What is defined is volume per second. So what we do in the fluid, we calculate the energies per unit volume. So जैसे pressure energy हो गई, that is pressure energy per unit volume is called P, just equal to pressure. Similarly, kinetic energy, I need not to explain that because we had already done this in detail. Kinetic energy per unit volume, अगर हम लिखें kinetic energy per unit volume, that is equal to half rho v square, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो क्या आता है, डेंसिटी. सो अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ रो वी स्क्वायर. एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज रो जी एच. Exactly in place of m we have density of fluid, right? बाद में कर लेना. जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने सॉलिड में पढ़ा था, ऐसे ही फ्लूइड में भी
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है. एंड दिस बर्नौली थ्योरम रिप्रेजेंट एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्लूइड. व्हाट दिस बर्नौली थ्योरम सेज, sum of pressure kinetic energy per unit volume we know that pressure is what? Pressure energy per unit volume. Sum of pressure, kinetic energy per unit volume and पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये क्या हो गई? तीनों एनर्जीज हो गई पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों एनर्जीज हो गई. सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन steady flow of ideal fluid. आइडियल फ्लूइड हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस नॉन कंप्रेसिबल. Remain constant throughout fluid flow, right? So it's nothing, it's simply conservation of energy in fluid. If ideal fluid is flowing, then the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume remain constant throughout the fluid, right? अगर फ्लूइड में विस्कोसिटी होगी तो सम ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट अगेंस्ट द विस्कस फोर्स, राइट? सो दैट इज आइडियल सिचुएशन हम लेते हैं, ऑल्दो नॉन विस्कस फ्लूइड होता नहीं है, बट दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग द आइडियल सिचुएशन. ओके, so that is P plus half rho V square plus rho GH is equal to constant. So this is our Bernoulli theorem. As far as 11th class is concerned and the subjective papers are concerned, this is really important. ठीक है, ये most of the papers में पूछी जाती है. We have to prove this. इसको हमको प्रूव करना है. ओके, सर प्रूफ भी आता है क्या? हाँ, तो इसके प्रूफ के लिए हम एक कोई ट्यूब एज्यूम कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की. ये हमारा ट्यूब है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है एंड हाइट इज ऑल्सो चेंजिंग. यहां पर हाइट h1 है और यहां पर हाइट h2 है. लेट्स से लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब. At this end we have the pressure P1, area A1, velocity V1. At this end we have pressure P2, area E2, velocity V2. Now because of the pressure difference, the fluid will flow in this direction. So let's suppose at this end the fluid is pushed by xm1 amount, that is by
a force F1. Obviously, this force is due to the pressure P1. So this force is pushing this fluid, and at this end, this is pushed by X1. Obviously, अगर यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, X1 फ्लूइड पुश हो रहा है, तो उधर भी जितना फ्लूइड इधर से एंटर करेगा उतना ही फ्लूइड उधर बाहर निकलेगा. तो उधर क्योंकि एरिया कम है, तो ये X2 थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो जितना इधर से आएगा उतना ही उधर जाएगा. तो इधर से अगर हमने X1 पुश किया तो उधर X2 पुश हो गया. अब ये प्रेशर है दिस साइड प्रेशर, उस साइड प्रेशर. तो उस साइड प्रेशर पे फ्लूइड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो ऐसे लगेगी, राइट. इस प्रेशर की वजह से ऐसे और उस प्रेशर की वजह से ऐसे, ठीक है. इधर ये राइट साइड पुश कर रहा है और उस साइड जो प्रेशर है वो इसको अपोज करेगा. ओके, सो दिस फोर्स विल बी ऑन दिस साइड, राइट. इसको हम मार्क कर लेते A एंड इसको मार्क कर लेते B. ओके, नाउ इफ वी कैलकुलेट, ये पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख नहीं रहा हूं, अंडरस्टूड है जो भी फिगर में डिस्क्राइब किया. वर्क डन एट A, W1 is equal to F1 X1, the force into distance. This force is due to pressure, so that become P1 A1 X1, and area, this area into this thickness, so that is what is the volume. So this is P1 V1. Now what will be the work at B? W2 is equal to minus F2 X2. Why minus sign? Because either fluid flow right side है and force left side है. So force and fluid flow are opposite to each other. So that's why it has a negative sign. And very similar, we can write P2 A2 X2, and this become minus P2 V2, right. So if we talk about total work on fluid, जो हुआ total work, that is W is equal to P1 V1 minus P2 V2. But V1 is equal to V2, क्योंकि जितना फ्लूइड इधर एंटर करेगा उतने उधर बाहर निकलेगा, और ये मान लेते हैं हम इक्वल टू V, मान लिया हमने से. सो W इज इक्वल टू कितना हो गया, P1 माइनस P2 V. That is the total work done on fluid, right. Now this work done on fluid to push A to B, this work done on fluid to push A to B changes energy of fluid. That is, अब एनर्जी में दो एनर्जी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ना वर्क डन तो हमारा आ गया ये P1 माइनस P2 V. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया mg H2 माइनस H1. अगर हम ये पूरे को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें,
So we get P1 minus P2 is equal to half rho V2 square minus V1 square plus rho G H2 minus H1. And if we make 1 on left side and 2 on right side, सारे 1 वाले left side कर दो, 2 वाले right side कर दो, so then we will get P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2 और P plus half rho V square plus rho G H is equal to constant. So this way we had proved this Bernoulli theorem. Right? Right. Now application of Bernoulli theorem. The first is Venturi meter. Venturi meter is what? Used to measure speed or rate of fluid flow. स्पीड ऑफ फ्लो क्या है या रेट ऑफ फ्लो क्या है, उसको मेजर करने के काम में आता है। आप अगर कहीं देखोगे घर में एक जो पानी की सप्लाई होता है उसके साथ एक मीटर लगा होता है, दैट मीटर इज नथिंग, दैट इज अ वेंचुरी मीटर, राइट। ये वेंचुरी मीटर कैसा होता है? ओके, द कंस्ट्रक्शन आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, वो आप देख लेना। कंस्ट्रक्शन में लिख नहीं रहा हूँ, बाकी देख लेना आप, मैं एक्सप्लेन पूरा कर दे रहा हूँ कैसे कंस्ट्रक्शन है, कैसे वर्क करता है। ये आपका वाटर पाइप जा रहा है, सपोज ये आपका वाटर पाइप जा रहा है। अब हमको इसके बीच में वेंचुरी मीटर लगाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको बीच में से ऐसे कट कर देते हैं। अ वेंचुरी इज व्हाट? अ कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, यानी कंस्ट्रिक्ट हो जाए। तो यहां पे हम एक पतला पाइप लगा देते हैं। इससे हम क्या करते हैं, पतला करके पाइप को स्पीड चेंज कर देते हैं, राइट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो अगर एरिया कम हो गया तो स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो यहां पे अगर एरिया A1 है, स्पीड V1 है, यहाँ एरिया A2 है, तो यहाँ स्पीड V2 हो जाएगी, राइट। एंड इट्स वेल अंडरस्टूड दैट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। नाउ इफ वी गो बाय द बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली थ्योरम के हिसाब से प्रेशर हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो V G H, प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस ट्यूब में क्या है, हाइट तो इसकी सेम है क्योंकि ट्यूब तो सेम ही है, तो हाइट इसकी सेम है, तो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट हो गया। अब हमने यहां पर स्पीड बढ़ा दी, अगर स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, अगर ये स्पीड बढ़ गई तो ये बढ़ गया, बट क्योंकि सम कांस्टेंट होना है तो प्रेशर यहां पे कम हो जाएगा। So what we are doing by increasing the speed, we are reducing the pressure. हम प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं वहां पे। तो यही करते हैं हम, जो फ्लूइड फ्लो है उसके बीच में एक वेंचुरी लगा के प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। What will be the advantage of reducing the pressure? अब हम यहाँ पे एक मैनोमीटर यूज करते हैं। सर बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो सर मैंने एप्लीकेशन की स्टार्टिंग से ही नहीं सुना। कोई बात नहीं।
राइट। सो ये हमने क्या किया, यहां पे एक मैनोमीटर लगा दिया। ओके, व्हाट वी डिड, दिस इज व्हाट वेंचुरी मीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड और रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्यूब होता है जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसको बीच में से ऐसे पतला कर देते हैं, बीच में से ऐसे पतला कर दिया। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई ये सेपरेट है। राइट, ये हमारा ट्यूब था, इसको हमने बीच में से पतला कर दिया। ठीक है, पतला करके हमने यहां पर एक ट्यूब लगा दिया, ये मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया ऐसे। इस टाइप से मैनोमीटर कनेक्ट किया। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, राइट। और इस मैनोमीटर के अंदर क्या होता है, मरकरी फील्ड होता है। सो दिस इज filled with mercury like this। ये मरकरी से filled है। ओके, नाउ हाउ इट वर्क्स, ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब ये काम कैसे करता है, क्योंकि हमने एरिया कम कर दिया तो स्पीड बढ़ जाएगी। दैट इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर एरिया कम हो गया तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, राइट। एंड इफ वी गो बाय द बर्नौली थ्योरम दैट सेज P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन तीनों का सम कांस्टेंट रहना है, तो अगर ये स्पीड बढ़ी सो देन व्हाट विल हैपन, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, सो what is there if I consider a point A and this point B? So then V2 is greater than V1, so P2 is less than P1, right? So accordingly यहाँ पे प्रेशर कम है तो मरकरी इस साइड ऊपर चढ़ जाएगा। Then what we do, we measure this difference of height। ये हाइट का डिफरेंस मेजर कर लिया, और ये हम बाई मैनोमीटर, ये मैनोमीटर हमें क्या बता रहा है कि दोनों साइड का जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू हाइट के बराबर। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी, क्योंकि ये मरकरी फील्ड है, into G into H। This is mercury। Right? So by the manometer हमने प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब बर्नौली थ्योरम में क्या है, ये ट्यूब का हाइट ग्राउंड लेवल से सेम है, तो इसको तो हमें कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाइट तो सब जगह सेम है। So what we need to consider the pressure and velocity. So by Bernoulli's theorem, P1 plus half रो, ये डेंसिटी किसकी है, फ्लूइड की, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। So if I make the pressure on the one side P1 minus P2 half rho V2 square minus V1 square is equal to, उल्टा कर दिया, हाँ ठीक तो है, is equal to P1 minus
P2. So if we replace them, half rho. Now V1 A1 A2 हमको मालूम है, V1 A1 A2, ये बेसिकली हमें V1 निकालना है क्योंकि V2 तो हमारा चेंज किया हुआ है। तो V2 को V1 से रिप्लेस कर देते हैं यूजिंग दिस। यहां से हमारे पास V2 कितना आएगा, V1 A1 अपॉन A2। तो यहां पे V2 को रिप्लेस कर दो, दैट इज V1 A1 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी G एंड हाइट। नाउ फर्दर इसमें से V1 स्क्वायर कॉमन ले लो। तो अगर हम V1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हाफ रो V1 स्क्वायर, ये A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू रो GH, एंड देन वी कैन कैलकुलेट V1। तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो GH अपॉन हाफ रो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको फिर एलसीएम वगैरह ले लो तो ये आ जाएगा V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऊपर चला गया रो GH अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये डेंसिटी ऑफ मरकरी और ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और ये हो जाएगा A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, एंड इसका हम अंडर रूट कर दें तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी, राइट। और रेट ऑफ फ्लो कितना होता है, रेट ऑफ फ्लो निकालना है, सो दैट इज A1 V1, इससे रेट ऑफ फ्लो मेजर हो जाता है। The another application is speed of efflux. Another application है speed of efflux. It's also called as Torricelli's law. What this law says, अगर हम एक कंटेनर लें और इसमें कुछ लिक्विड फिल्ड है, इसके H नीचे टॉप सरफेस से H नीचे हम एक होल करें, कितना नीचे, H नीचे, एक होल करें, दिस इज कॉल्ड ऑरिफिश। ऑरिफिश मीन्स अ वेरी स्मॉल होल। ठीक है, एक कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है, उसमें H नीचे हमने एक होल किया, दैट होल, अ स्मॉल होल इज कॉल्ड ऑरिफिश। तो इससे लिक्विड बाहर निकलेगा, इससे लिक्विड बाहर निकलेगा, एंड सपोज इट इज कमिंग आउट ऑफ V स्पीड, then this speed is same as an object will acquire falling through the same height. अगर ये h हाइट नीचे है तो h हाइट गिरने में एक ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड एक्वायर करेगा उतनी ही स्पीड इस एफ्लक्स की होगी। एफ्लक्स इज व्हाट, दिस फ्लूइड कमिंग आउट, द स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड, द थिन स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड इस एफ्लक्स। तो इस एफ्लक्स की स्पीड वही होगी जो एक ऑब्जेक्ट h हाइट गिरने में एक्वायर करता है। और कितनी स्पीड होती है, स्पीड h हाइट नीचे ऑब्जेक्ट गिरता है तो कितनी होती है, √2gh। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स विल बी सेम।
This is what is Torricelli law. Fluid speed of fluid outflow from an orifice at depth h is same as an object acquire in falling through same height h. ठीक है, speed of fluid outflow from an orifice at depth h is same as an object acquired in falling through same height freely in gravity. That is V is equal to root 2 GH. This is what is the Torricelli's law. Okay. अब इसको हमको प्रूव करना है यूजिंग द बर्नौली थ्योरम. तो हम दो पॉइंट यूज करते हैं, एक पॉइंट जस्ट अबाउ द सरफेस और एक पॉइंट एट द ऑरिफिस, राइट. Now, pressure at A is P naught because that is open to atmosphere. क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में ओपन है तो वहां पे प्रेशर P naught होगा. स्पीड एट A इज 0 क्योंकि इधर फ्लूइड फ्लो नहीं है, फ्लूइड फ्लो सिर्फ इधर है. हाइट ऑफ A, तो ये एज्यूम कर लेते हैं हाइट h है, that is h. This is what parameter we need for the application of Bernoulli theorem. The pressure at B, orifice is open to atmosphere, so pressure at orifice will also be equal to atmospheric pressure, so that is also P naught. What is the speed at A? B, ये हमें कैलकुलेट करनी है V. And what is height at B? That is h minus h. ठीक है. So by Bernoulli's theorem, PA plus half rho VA square plus rho GHA is equal to PB plus half rho VB square plus rho GHB. तो ये तो हमारा बर्नौली थ्योरम हो गया. अब इनकी वैल्यूज प्लेस कर दो. प्रेशर एट ए P नॉट 0, रो G कैपिटल H P नॉट प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H माइनस H. ये तो कैंसिल हो गया. सो हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू रो G H माइनस रो G H minus H. That will come out as half rho V square is equal to rho G H. माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा. सो V, अब रो रो कैंसिल हो गया तो V is equal to root 2 GH. So that is what is the speed of efflux or fluid outflow from an orifice. ठीक है बच्चों.